गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं जयप्रकाश यादव, पीजीटी हिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 तेजपुर यूनिवर्सिटी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जो पहला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने सीबीएसई करिकुलम 2020-21 के अंतर्गत जो चीज़ें आपको बताई थी, उसमें मैंने हिस्ट्री, सोशल साइंस के अंतर्गत जो हिस्ट्री का पोर्शन था, आई हैव कवर्ड दैट particular subject, and in our this video we are going to discuss on the geography. So there are total 7 chapters. You can see that the name of the chapters are resources and development, forest and wildlife, water resources, agriculture, minerals and energy resources, manufacturing industries, and lifelines of national economy. So my dear students, let us start in detail. So in our board exam of 2021 session, the chapters which are going to be asked in the board exam, or you can say that the chapters which are given in the books, their numbers are 7, but only 5 chapters are going to be asked in the board exams. So let us start in the deep. Resources and development, it is our first chapter of geography. So the main topics, the main key features which are described by the CBSE are as follows: types of resources, development of resources, resource planning in India, land resources, land utilization, land use pattern in India, land degradation and conservation measures, soil as a resource, classification of soils, and the last one is soil erosion and soil conservation. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो मेन टॉपिक सीबीएसई ने डिस्क्राइब किया है, वो ये सारे थे जो मैंने आपको बताए। इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कितने टाइप होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ द रिसोर्सेज वे आर डेवलप्ड और व्हाट हाउ वी कैन डेवलप आवर रिसोर्सेज और कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। ओके, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रिसोर्स को लेकर के क्या प्लानिंग है या क्या प्लानिंग थी और आगे क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको डिटेल में पढ़ना होगा। लैंड रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। जब हम अपने चैप्टर पे आएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तो इस पर डिस्कस ज़्यादा किया जाएगा। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है या किस तरीके से यूटिलाइज अभी किया जा रहा है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में लैंड को यूज़ करने का पैटर्न क्या है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर्स, ये टॉपिक है आपका। सॉइल एज ए रिसोर्स, रिसोर्स के रूप में आप सॉइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी जानकारी कलेक्ट करनी होगी। एंड व्हेन वी स्टार्ट द लेक्चर ऑन द चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन इट इन द डिटेल. So our last topic in this channel, this chapter is soil erosion and soil conservation. It is also a very important topic of the chapter. So you have to study deep on these topics. The next chapter of this geography book is forest and wildlife. So the topics which are given in this chapter, or you can say that described as key features or very important by the CBSE, are biodiversity or biological diversity. It is first one. The second one is flora and fauna in India, flora and fauna in India. Vanishing forests, ये भी आपका एक important topic है. Asiatic cheetah, where did they go? The next one is the Himalaya is in trouble, conservation of forest and wildlife in India. The next one is Project Tiger,
and the next one is types and distribution of forest and wildlife resources, and the last one of the chapter is community and conservation. My dear students, you have to know that this chapter forest and wildlife is not going to be asked in the board exam. Clear? I repeat, the chapter forest and wildlife of your geography book is not going to be asked in the board exam. It is only is to be asked in your periodic test. So you have to prepare this chapter for the only periodic test, not for the board exam. Okay, and here it is also described in the bold letters, you can see. The next one is water resources. So our next important uh, chapter is water resources, and this one is also uh, supposed to be asked in the only in the periodic test, not in the board exam. So the important topics which are described by the CBSE are water scarcity and the need for water conservation and management, multi-purpose river projects and integrated water resources management, and the last one is rainwater harvesting. So my dear students, ये जो चैप्टर है और ये केवल और केवल आपके बोर्ड एग्ज़ाम सॉरी केवल पीरियोडिक टेस्ट में ही आने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। ओके, एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आ रहा है, इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आप यहाँ से देखिए, ये जो चीज़ सॉरी ये जो चीज़ है, ये आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में मैप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आप इस पोर्शन को देखिएगा, तो ये जो है आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस मैप के यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो पीरियोडिक टेस्ट में इससे क्वेश्चन आंसर ही आएंगे और मैप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, केवल मैप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, एग्रीकल्चर. It is a very important chapter for your board exam. So the key topics of this chapter is types of farming, cropping pattern in India, major crops, technological and institutional reforms, impact of globalization on agriculture. ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको अच्छे से अपनी पकड़ बनानी होगी। ये की फीचर्स हैं, की टॉपिक आप बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है व्हाट इज़ अ मिनरल, मतलब मिनरल्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसमें आपको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अच्छे से डीप आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप चीज़ों को समझिएगा, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब हम चैप्टर को और डिस्कस करेंगे तो इस पे जब हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो इसमें हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। द 6th चैप्टर इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकॉनमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल pollution and environmental degradation, and control of environmental degradation. It is a very important chapter of our geography book. And the last chapter of our geography book is lifelines of national economy, and the important topics which are described by the CBSE are ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत इसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन, द थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड लास्ट वन इज़ टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो ये 7 चैप्टर जो है आपके ज्योग्राफी बुक में दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल और केवल 5 चैप्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे।
मैं उन्हें आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो केवल आपके प्रोडक्ट टेस्ट में आना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाटर रिसोर्स भी आपके प्रोडक्ट टेस्ट में ही आना है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस चैप्टर से आपसे मैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी इससे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, फिफ्थ वन इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड द लास्ट वन इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो प्यारे बच्चों, इन 7 चैप्टर्स में से केवल 5 ऐसे चैप्टर हैं जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और जो आपका ये चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इससे केवल मैप क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम सिविक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं, और उसके कौन से की टॉपिक्स हैं जो कि CBSE के थ्रू डिस्क्राइब किए गए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।